Hello everyone, my name is Manoj Ahuja. We are starting a new subject, financial market management. It is a subject introduced by CBSE some years ago, and it is a skill subject. And so many schools have introduced this subject this year. Some of the schools have introduced this subject previous year, and it is very important and also a tough subject. And I have seen that so many students have this problem. We are starting the subject to help out the students how they can easily understand these things with some specific notes. Yes, it is relate with the CBSE curriculum and a CBSE book which is published by them. It is completely relate with it. Okay, so we are starting this without wasting the time. Okay, so financial market management. This is the subject's name, and as I said, it is a specific for class 11th right now. We will introduce class 12th curriculum also in future, but right now we are starting with 11th class. Okay, so financial market management. Specifically, we are talking about financial market. When we are talking about financial market, it is very important to understand that financial market is not the market which you are seeing in the area of yours. This is the something where stocks, bonds, shares, these things are dealing. And as you are स्टडिंग इन द 11th क्लास मेजरली स्टूडेंट्स आर ऑफ द कॉमर्स. अगर आप कॉमर्स से हैं तो आपको बिजनेस स्टडीज के अंदर शेयर्स बॉन्ड्स डिबेंचर्स इन सब के बारे में कुछ ना कुछ आपको पता चला होगा. ठीक है, जब हम फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो ये सब चीजें नॉर्मली आएंगी. तो वी आर स्टार्टिंग विद द यूनिट नंबर 1. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिट नंबर 1, unit number 1 is a market and financial instruments. It is related to the financial market, and financial market we are talking about. See, first of all, what is investment? When we are talking about what is investment, the money you earn is partly spent and the rest saved for meeting future expenses. Instead of keeping the saving ideal, you may like to use saving in order to get some financial returns on it in the future. This is called investment. So now we are understanding this. See, if you are earning 10,000 rupees per month, we are assuming this. I know it is a very small amount, but this is just for an example. So if you are earning 10,000 rupees per month, in this situation, if you are spending 7,000 rupees per month on your groceries or whatever your needs are. Now, rest saved, you have saved 3,000 rupees for meeting future expenses, uncertainties. Yes. Now, instead of keeping the saving is ideal, what you are doing in normally you save this money in your bank account, which is the saving bank account, where you can get 3.5% per annum. It can be varied from 3 to 6%. Okay, so in this situation, you are saving your money in an ideal way. Ideal way means आपका जो पैसा है वो बिल्कुल आपको कुछ भी रिटर्न नहीं दे रहा है, ना के बराबर रिटर्न दे रहा है, और इतनी कम रिटर्न्स पे आपके लिए फ्यूचर में आएंगी प्रॉब्लम्स. ओके, व्हाट प्रॉब्लम्स यू विल फेस वी विल डिस्कस इन द फ्यूचर, बट राइट नाउ आप क्या करना चाहते हैं कि इस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में रख के या फिर घर पे रख के अपने पास कैश रख के, पीपल आर टेकिंग दिस कैश ऑल्सो. घर पे लोगों के पास में 5 लाख 10 लाख रुपए कैश पड़ा है, 5 लाख 10 लाख रुपीज कैश घर पे पड़ा है. अब वो 10 लाख रुपए कैश घर पे रख के क्यों वेस्ट करना है मनी को? इट्स बेटर नॉट टू मनी बी एन आइडियल. ठीक है, आपको वेस्ट मत करो, बेटर है कि आप उसे इन्वेस्ट करो और कुछ फाइनेंशियल रिटर्न्स आप यहाँ पे रिसीव करो. Okay, so this is called investment when you are investing your ideal saving which is not in use right now. Okay, now why should one invest? क्यों करना चाहिए? ऐसा क्यों जरूरत है हमें? ऐसा क्या फर्क पड़ जाएगा अगर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो? So one need to invest in earn financial return in your ideal resource.
जैसा कि हमने डिस्कस किया कि कुछ फाइनेंशियल रिटर्न आपको मिलती रहेगी तो अच्छी बात है, आपके काम आएंगी। और जनरेट स्पेसिफिक सम ऑफ द मनी फॉर द स्पेसिफिक गोल इन लाइफ। बहुत सारे गोल होते हैं, सर मुझे कार परचेज करनी है, मुझे हाउस परचेज करना है, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस, व्हाटएवर यू हैव, व्हाटएवर रिक्वायरमेंट्स यू हैव, व्हाटएवर वांट्स यू हैव। ठीक है, आपकी अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी वांट्स के हिसाब से आप अपने कुछ स्पेसिफिक गोल्स बनाते हैं। ठीक है, ये कुछ गोल्स हैं जो स्पेसिफिकली हम नीड्स, हाउस को नीड में मानते हैं, कार को कहीं ना कहीं वांट्स में मानते हैं, बट कभी कभी ये दोनों नीड भी हैं, कभी कभी ये दोनों वांट्स भी हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ठीक है, बट स्पेसिफिक गोल में और भी हो सकते हैं कि सर आपके जो चिल्ड्रंस हैं उनके लिए एजुकेशन की बात अगर हम करें, नॉर्मली अगर आप देखोगे इंडियन फैमिलीज के अंदर फादर को सबसे ज्यादा टेंशन होती है अपनी बेटी की शादी की, तो बेटी की शादी के लिए भी तो उसे पैसा जमा करना पड़ेगा। दैट इज अ स्पेसिफिक गोल। स्पेसिफिक गोल की जब हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए आपको पैसा यहाँ पे चाहिए होगा आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, हो सकता है 5 इयर्स के बाद चाहिए हो, 10 साल के बाद चाहिए हो, 15 साल के बाद चाहिए हो, डिपेंडिंग ऑन द टाइम। सो वेन एवर वी आर डिसाइडिंग कि कितने टाइम बाद चाहिए, अब इतने टाइम तक आप पैसे को अगर आप सिर्फ बचाते रहोगे अपने पास में तो उससे कुछ नहीं होगा, आपको उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि ऑन टाइम, क्योंकि 5 साल तक एक जगह पैसा जमा नहीं करना, आप उसमें से निकालोगे नहीं, ये कंफर्म है, उसमें से आप पैसा नहीं निकालने वाले हो क्योंकि उसका गोल बहुत स्पेसिफिक है, आप उस पैसे को किसी भी कंडीशन में नहीं निकालते। सो इट्स बेटर टू इन्वेस्ट। नाउ मेक अ प्रोविजन फॉर द अनसर्टेन फ्यूचर। अनसर्टेन फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं, सर फ्यूचर सर्टेन नहीं है। हमने देखा है कोविड के टाइम पे क्या हुआ, लोगों के पास में अगर पैसा था तो वो सेफ है, लेकिन अगर पैसा नहीं था तो बहुत दिक्कतें आई हैं उनको। ठीक है, तो इतनी दिक्कतों का सामना अगर करना पड़ रहा है तो आप समझो कितनी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं अगर फ्यूचर अनसर्टेन हुआ और हमने उसके लिए कुछ पैसा साइड में नहीं रखा, कोई प्रोविजन नहीं बनाया, तो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। ओके, नाउ one of the important reason why one need to invest wisely to meet its cost of inflation, very important, सबसे ज्यादा important मैं मानता हूँ इन्फ्लेशन, क्योंकि इन्फ्लेशन जिस स्पीड से बढ़ रहा है उस स्पीड से अगर हम बात करें तो हमारा जो मनी है वो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। ठीक है, अब इसके लिए हम एग्जांपल भी देखेंगे अभी। इन्फ्लेशन इज द रेट एट विच द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीजेस। इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन वो चीज है जिससे हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज होगी। मैक्सिममली आई थिंक आप सब समझते हैं इन्फ्लेशन क्या है। अब नाउ कॉस्ट ऑफ लिविंग इज द सिंपली व्हाट इट कॉस्ट टू बाय द गुड्स एंड सर्विसेज यू नीड टू लिव। Inflation causes money to lose value because it will not buy the same amount of goods or services in the future as it does now or did in the past. ठीक है, अब इस चीज को समझो, एक बार इस एग्जाम्पल को समझते हैं और इस एग्जाम्पल के बाद हम दोबारा चलते हैं इस लाइन को पढ़ने, जिसको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सी, अगर इन्फ्लेशन की रेट 6% है अप्रोक्सीमेटली, हमने मान लेते हैं जो भी अभी चल रही है, हम आपको चेक कर सकते हैं डेटा के ऊपर, हम कभी क्वेश्चन नहीं करेंगे, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। ओके, फॉर एग्जाम्पल यू हैव 1 लाख रुपीज राइट नाउ। ठीक है, मतलब 1 लाख रुपीज है, अगर आप कोई गुड्स परचेज करने जा रहे हो उसकी आज की वैल्यू 1 लाख है, तो 1 साल बाद वो कितने का मिलेगा? बिकॉज इन्फ्लेशन रेट इज 6%, सर 1,06,000। उसके अगले साल कब मिलेगा? क्योंकि इन्फ्लेशन तो एवरी ईयर 6% इंक्रीज होता जाएगा ऑन कंपाउंडिंग बेसिस। तो 1,06,000, देन 1,12,360, देन 1,19,102, 126, 248, 133, 823, 141, 582, ऐसे करते करते प्राइसेस इंक्रीज होते जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है कि मैंने इन्वेस्ट किया, मुझे लगा कि इन्फ्लेशन रेट से तो ज्यादा होना चाहिए, तो उससे क्या इम्पैक्ट होगा? जो 1 लाख रुपीज मैं आज इन्वेस्ट कर रहा हूँ उससे मुझे नेक्स्ट ईयर मिलने वाले 1,07,000, 114,490, 1,22,504, 131,080, 140,255, 150,073, ये अमाउंट होते जाएंगे। सी द डिफरेंस, जो चीज आज आफ्टर 7 इयर्स 1,41,582 की मिलेगी, उसके लिए इस इन्वेस्टमेंट की वजह से मेरे पास 1,50,073 है। अगर आपने ये पैसा इन्वेस्ट नहीं किया होता तो उस कंडीशन में आपके पास में 1 लाख ही होते, यहाँ पे भी, यहाँ भी आपके पास में 1 लाख ही होते। नाउ सी द डिफरेंस, अब जो चीज उस टाइम पे 1 लाख की परचेज कर पा रहे थे, आज 1 लाख में परचेज नहीं कर पाओगे। सो आपके जो मनी की वैल्यू है वो होती जा रही है यहाँ पे कम। ठीक है, इसके लिए इन्फ्लेशन से कवर अप करना बहुत जरूरी है। ओके, सो
द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज सिंपली व्हाट इट कॉस्ट टू बाय द गुड्स एंड सर्विसेज यू नीड टू लिव। ये है हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। और इन्फ्लेशन कॉज मनी टू लूज वैल्यू, जैसा हमने कहा कि देखो मनी की वैल्यू यहाँ लूज होती जा रही है बिकॉज इट विल नॉट बाय द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स, क्योंकि आप सेम अमाउंट ऑफ गुड्स नहीं बाय कर पाओगे या सर्विसेज इन द फ्यूचर। इट डज नाउ और डिड इन द पास्ट, जो पहले गया वो। ठीक है, इस कंडीशन में इन्वेस्टमेंट इसलिए बहुत जरूरी है। द पीपल हु इज इन्वेस्टिंग विदाउट चेकिंग द इन्फ्लेशन रेट विल बी इन द लॉस। ठीक है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इस चीज को फेस कर रहे हैं। नाउ व्हेन टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, कब करना चाहिए? सी, the sooner one start investing is better. By investing early, you allow your investment more time to grow. ठीक है, जितना आप यहाँ पे इस चीज को समझोगे कि जल्दी से जल्दी, as soon as possible, ठीक है, उतना आप ज्यादा टाइम दोगे अपने मनी को ग्रो करने में। Whereby the concept of compounding, as we shall see later, आगे जाके कंपाउंडिंग को सीखना है। Increase your income by accumulating the principal amount and interest or dividend earned on it year after year. The three golden rules for the investors are invest early, invest regularly, and invest for the long term as well as शॉर्ट टर्म। दोनों के लिए इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। अगर आप ऐसा सोचोगे कि नहीं नहीं लॉन्ग टर्म के लिए कर लेते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए क्यों करना, बहुत सारे हमारे ऐसे गोल्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म में हमें पूरे करने होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए वेट नहीं करना होता। ठीक है, ये एक वॉरेन बफेट का कोट है और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपाउंडिंग की बहुत अच्छी मीनिंग उन्होंने हमें समझाई हुई है। आई बॉट माई फर्स्ट शेयर एट द एज ऑफ 11 ईयर्स, इवन इट वॉज टू लेट। 11 ईयर्स में इसको बाय किया, उसके बाद भी अगर ये देर से था तो आप तो अभी आप अपनी एज देखेंगे तो आपको लगेगा कि शायद सर हम जल्दी सोच रहे हैं या वो लेट सोच रहे थे, वी डोंट नो। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारे कंफ्यूजन कहीं ना कहीं आते हैं। ठीक है, कि कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। पीपल आर जस्ट थिंकिंग, मतलब ऐसे भी हैं कुछ लोग 25 ईयर्स प्लस एज में जा चुके हैं, अभी भी उनको लगता है कि शायद अभी तो लाइफ एंजॉय करने का टाइम है, अभी क्या करना है सेव करके। ठीक है, बट मैं आपको बता दूं कि अगर आप टाइमली सेविंग नहीं स्टार्ट करोगे तो उससे क्या इम्पैक्ट होने वाला है वो हम जस्ट कुछ एग्जांपल्स में भी समझने वाले हैं। उससे आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि जल्दी से जल्दी इन्वेस्ट करने से क्या होने वाला है। सी, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंडिंग, आपको इससे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इफ म्यूचुअल फंड इज गिविंग अस 18% रिटर्न, देखो 18% बहुत ज्यादा है, बट फिर भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड 25%, 30% तक भी दे रहे हैं। काफी सारे म्यूचुअल फंड 12, 13, 14, 15 भी दे रहे हैं। ठीक है, बट अगर मैं सिंपली बात करूं, इंडेक्स फंड भी करीब करीब 15-16% तक की रिटर्न निकाल के दे रहा है। तो म्यूचुअल फंड अगर 18% देता है, वी आर अज्यूमिंग दिस, ठीक है, ये जस्ट एन एग्जांपल है, तो एग्जांपल से आपको चीजें जो है तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। ओके, अच्छा सी, if mutual fund is giving us 18% return on compounding basis, then as per the rule of 72, देखो एक रूल 72, रूल ऑफ 72 है, जिसमें अगर आप चेक करना चाहते हो कि अपना पैसा कितने टाइम में डबल हो जाएगा, तो 72 आपको करना क्या है कि 72 डिवाइडेड बाय जो भी रेट परसेंटेज आपको रिटर्न मिल रही है पर एनम, उससे डिवाइड करना है। तो हमने 18 से डिवाइड किया तो 4 इयर्स के अंदर हमारा पैसा डबल हो जाएगा। यू कैन ट्राई दिस ऑन द कैलकुलेटर। ठीक है, अगर आपने 20 की एज में 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, हम ये बात कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स नॉर्मली इसे देख रहे हैं 11th क्लास के, वो अराउंड अभी 16-17 की एज में है, तो 20 की एज में 1 लाख तक का इन्वेस्टमेंट उनके लिए पॉसिबल है। हम उन्हीं के अकॉर्डिंग बात करते हैं। अगर ये 18% रेगुलर मेंटेन रहता है, ऑब्वियसली कभी कम कभी ज्यादा होता है, बट एक बार मान लेते हैं कि 18% तक ये चीज मेंटेन रहती है। अगर ये 18 तक मेंटेन रहती है तो उस कंडीशन के अंदर जरा समझना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 20 के बाद 24 में आपका पैसा हो जाएगा 2 लाख, 24 से 28 4 लाख। ठीक है, हम इसको एट द एज ऑफ 60 तक लेके जा रहे हैं टिल योर रिटायरमेंट। ठीक है, 2 लाख, 4 लाख, 8 लाख, 16 लाख, 32 लाख, 64, 1 लाख, 28, 256, 512, 10 करोड़ 24 लाख। आपका सिर्फ 1 लाख रुपए जो इन्वेस्ट आपने किया था वो पहुंच सकता है 10 करोड़ 24 लाख। 10 करोड़ 24 लाख इज द वेरी बिग अमाउंट, सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है। और हम तो यहाँ बात कर रहे हैं रेगुलर इन्वेस्टिंग की। ठीक है, यहाँ तो वन टाइम इन्वेस्ट करके हम 10 करोड़ प्लस अमाउंट बना सकते हैं। जस्ट अज्यूम अगर आपने यहाँ 10 लाख इन्वेस्ट किए होते तो ये एक जीरो और बढ़ गया,
102 करोड़। आप सोच सकते हैं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, कि कंपाउंडिंग आपके लिए क्या कर सकती है। ये एक कंपाउंडिंग, आप इसको समझना कि जिस भी पर्सन ने कहीं 32 की एज में इन्वेस्ट किया होगा, 36 की एज में इन्वेस्ट किया होगा, तो उसे कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा ये अमाउंट लेने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ 10 लाख की बात कर रहे थे, एक एक जीरो हम सब जगह बढ़ा देते हैं। ठीक है, अगर किसी पर्सन को 100 करोड़ प्लस चाहिए 60 की एज में, तो 40 की एज में उसको कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सी 3 करोड़ 20 लाख, 3 करोड़ 20 लाख उसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके वो 100 करोड़ बनेंगे। अब 3 करोड़ 20 लाख 40 की एज में सेविंग्स हो पाना, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड है, एक्सपेंसेस इतने ज्यादा हैं, हमारे ईएमआई लोन्स इतनी चीजें हो चुकी हैं कि इट्स नॉट पॉसिबल टू हैव अ मनी 3 करोड़ 20 लाख इन हैंड। Okay, so this is the example of compounding, which is very very important for you. Okay, now what care should one take while investing? क्या ऐसी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, अगर हम वो ध्यान नहीं रखेंगे तो हमें दिक्कत होने वाली है। हाँ जी, ऐसा क्या है? सी, before making any investment, there are certain steps to ensure safety of investment. There are 12 important points, steps to investing where the investor must make sure to obtain written document एक्सप्लेनिंग द इन्वेस्टमेंट। आपको करना क्या है, जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो डॉक्यूमेंट्स रिटर्न में लो जिसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में 100% एक्सप्लेन कर रखा हो। रीच एंड अंडरस्टैंड सच डॉक्यूमेंट, इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ो और समझो अच्छे से कि क्या बता रहे हैं। इसमें सब चीजें वही लिखी हुई है जो मुझे चाहिए एज एन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नाउ वेरीफाई द लॉफुलनेस ऑफ द इन्वेस्टमेंट। देखो जरा लीगल डॉक्यूमेंट्स है या नहीं, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो लीगल है कि नहीं है। अगर लीगल फॉर्म में नहीं है तो वहां कहीं ना कहीं आपको चेंज कर लेना चाहिए। ठीक है, किसी और इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि अगर लीगल नहीं होगा तो कभी कोई डिफॉल्ट हुआ आगे इन्वेस्टमेंट जहां आप कर रहे हो, किसी भी कंपनी में कर रहे हो उनकी तरफ से, तो आप कहीं ना कहीं कुछ कर नहीं पाओगे, केस नहीं कर पाओगे उनसे। ठीक है, कोई आपको हेल्प करने वाला नहीं होगा, क्योंकि हेल्प करने के लिए आपका लॉफुल एक्ट बहुत जरूरी है। Now, find out the cost and benefits associated with the investment. देखो जरा क्या खर्चे आपके लगने वाले हैं, क्या फायदे हैं। खर्चे का मतलब नॉर्मली अगर आप देखोगे तो ब्रोकरेज होती है। ठीक है, ब्रोकरेज के अलावा और क्या हो सकता है, सर ब्रोकर के अलावा कोई स्पेसिफिकली कमीशन वगैरह एक्स्ट्रा कोई चार्ज हो रही है, वो सब चीजें हो सकती हैं। ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी होती है। ठीक है, कई तरीके के खर्चे हैं जो आपको देखने होंगे, जो इनिशियली कॉस्ट आपकी लगने वाली है उस इन्वेस्टमेंट को करने के लिए। असेस द रिस्क रिटर्न प्रोफाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखो रिस्क एंड रिटर्न की बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिस्क रिटर्न की बात कर रहे हो, तो अगर रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा होगी। अब जरा देखो कहीं ऐसा तो नहीं है कि रिस्क तो ज्यादा है पर रिटर्न उसके बराबर नहीं आ रही। अगर ऐसा है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपके लिए, क्योंकि रिस्क तो ज्यादा ले रहे हो लेकिन रिटर्न आ नहीं। तो असेस द रिस्क रिटर्न प्रोफाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की रिस्क और रिटर्न प्रोफाइल दोनों देखनी जरूरी है। सर रिस्क कम है रिटर्न ज्यादा है, ऑब्वियसली बहुत ही बढ़िया चीज है, बट चांसेस रेयर होते हैं, ऐसा होता नहीं। नो द लिक्विडिटी एंड सेफ्टी एस्पेक्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। लिक्विडिटी का मतलब क्या है यहाँ पे, लिक्विडिटी मीन्स कि सर मुझे अपने इन्वेस्टमेंट को कभी भी बेचना पड़े तो क्या मुझे इंस्टेंटली पैसा मिल जाएगा, विद इन 1 2 3 वर्किंग आवर्स, वर्किंग डेज के अंदर मुझे पैसा मिल जाएगा। सर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पैसे की जरूरत इमरजेंसी में पड़ी तो क्या मैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को बेच सकता हूँ या नहीं, ये देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, डिपेंडिंग कि आप सारा पैसा मत डालो 100% लिक्विडिटी में, लेकिन फिर भी काफी सारा पैसा आपका लिक्विडिटी में होना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी में अगर आपको पैसा चाहिए तो सिचुएशन में आप नहीं कर पाओगे। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। लोग रियल एस्टेट में बड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। रियल एस्टेट के अंदर खरीदना तो आपके हाथ में है, कभी कभी बेचना आपके हाथ में नहीं होता, क्योंकि एट द सेम टाइम प्रॉपर्टी आप बिक जाए आपकी, वेरी रेयर चांस। ठीक है, कभी हो सकता है 1 महीने में बिक जाए, कभी 6 महीने, कभी 1 साल भी लग जाए। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। ओके, सेफ्टी एस्पेक्ट। अब सेफ्टी है या नहीं, जहां आप इन्वेस्ट कर रहे हो सेफ होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये। डिस्कस करना चाहिए आपको अपने इन्वेस्ट, जहां भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कि उसके पास क्या सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या क्या चीजें आपको वो सामने वाला बता सकता है कि सर इन रीजंस की वजह से आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्ली सेफ है। और भी आप देखना चाहिए रेगुलेटरी कौन है जहां आप इन्वेस्ट कर रहे हो। जैसे अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हो,
तो वहां से भी कहीं ना कहीं रेगुलेटर है, थोड़ा सा सेफ ज्यादा रहेगा। और भी है, एफडीज वगैरह में भी आप कर सकते हैं, बट ये जस्ट एन एग्जाम्पल। नाउ उसमें मीन इफ इट इज एप्रोप्रिएट फॉर योर स्पेसिफिक गोल, देखना जरूरी है कि क्या ये आपके स्पेसिफिक गोल, जो भी आपका स्पेसिफिक गोल है उससे रिलेटेड अप्रोप्रिएट है या नहीं। ठीक है, आपको इन्वेस्टमेंट के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहां इन्वेस्टमेंट करना है 3 साल के लिए, लेकिन आपके पास में इतना टाइम के लिए वो पैसा फ्री नहीं है, आपके पास पैसा सिर्फ 1 साल के लिए फ्री है। तो 1 साल के लिए पैसा अगर फ्री है तो आप यहाँ नहीं डाल पाओगे। ठीक है, आपके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, आपको 1 साल बाद पैसे की जरूरत पड़ने वाली है, आपको पता है पहले से, तो उस कंडीशन के अंदर दिस इज नॉट गुड। सिमिलरली, अगर मान लो कि आपका 1 साल का इन्वेस्टमेंट है और आपको पता है कि आपके पास 3 से 5 साल के लिए पैसा फालतू पड़ा है, तो उस कंडीशन के अंदर आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहिए जो लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा बेनिफिट। ठीक है, टाइम जितना ज्यादा होता है बेनिफिट ज्यादा चांस होता है। नाउ कंपेयर दीज डिटेल्स विद द अदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। आपको ये भी करना जरूरी है कि सर ऐसा नहीं कि एक इन्वेस्टमेंट किसी ने बताया, सर मेरे फैमिली में इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, इन्होंने कर रखा है, मेरे फ्रेंड्स ने कर रहा है, मैं भी कर दूं। नहीं, ऐसा नहीं प्लीज। ठीक है, आप जो जहां भी इन्वेस्ट करने वाले हो, अदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मार्केट में अवेलेबल होंगी ऑब्वियसली, उनसे कंपेयर करो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम गलत जगह पैसा डाल रहे हैं, और जगह इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा अवेलेबल है। ठीक है, ज्यादा बेटर ऑप्शन अवेलेबल है, तो ऐसा नहीं करना। Examine if it fits in with other investment you are considering or you have already made. आपको एक चीज और चेक करनी जरूरी है, if it fits with the other investment you are considering or you have already made। हो सकता है कि आपने कुछ पहले ही एफडी करा रखी है, पहले से आपकी 1 करोड़ की एफडी चल रही है, अब आप 1 करोड़ की एफडी पहले से करा के बैठे हो और आपको फिर कोई कह रहा है सर एफडी और करा लो, तो अब इस कंडीशन में आप मैक्सिमम सेफ्टी के साथ जो इन्वेस्टमेंट करना था आपको तो ऑलरेडी करके बैठे हो, दोबारा से वही करना क्या लॉजिक है। ठीक है, अगर आप एफडी करा के बैठे हो, आप कह रहे हो मैं म्यूचुअल फंड में और पैसा डाल दूं, तो इट्स गुड कि ठीक है सर, एक हमारा थोड़ा सेफ हो गया, एक थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन कहीं ना कहीं रिटर्न भी ज्यादा मिलने के चांसेस है। ठीक है, डील ओनली थ्रू ऑथोराइज इंटरमीडियरी। ऑथोराइज इंटरमीडियरी की जब हम बात कर रहे हैं, जो हमारे ब्रोकर्स हैं वो ऑथोराइज्ड हैं या नहीं है जिससे आप डील कर रहे हो, कहीं ऐसा नहीं हो कि आपका पैसा डूब जाए। ऐसा बहुत सारे फ्रॉड्स मार्केट में होते हैं, तो आपको बहुत ध्यान रखना है। Seek all clarification about intermediary and investment and invest only if you are comfortable, refuse to invest if you are not convinced। देखो, आप सारे क्लैरिफिकेशन लो। ठीक है, किससे रिलेटेड, इंटरमीडिएट से रिलेटेड। ठीक है, एंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल हो, ठीक है, तभी इन्वेस्ट करना। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आपको क्या कर लेना चाहिए, रिफ्यूज कर देना चाहिए कि सर आई एम नॉट कन्विंस्ड, मुझे नहीं लगता कि मुझे आपके यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप कंफर्टेबल हो तो ही इन्वेस्ट करो, नहीं तो आपको ही आगे जाके प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, दिस इज योर मनी, अपना पैसा किसी को भी नहीं देना होता है, बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना होता है। इफ समथिंग वर टू गो रॉन्ग, कुछ गलत हो गया, देन एक्सप्लोर ऑल द ऑप्शंस अवेलेबल टू यू, इफ सेटिस्फाइड देन मेक द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्या बोलना चाहता है, इफ समथिंग वर गो रॉन्ग, ये इसी से रिलेटेड पॉइंट है। आपको लग रहा है कि क्लैरिफिकेशंस जो हैं या जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्लैरिफिकेशंस हैं, ये चीजें ठीक नहीं जा रही हैं, गलत जा रही हैं, मुझे नहीं लगता कि करना चाहिए। ठीक है, तो एक्सप्लोर द ऑप्शंस, अदर ऑप्शंस, जो भी अदर ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है मार्केट के अंदर। ठीक है, वहां देखो कि और क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। और जैसे फॉर एग्जांपल आपने जब रिसर्च करना स्टार्ट किया तो आपके पास 5 ऑप्शन आए थे, 5 में से आपने एक सेलेक्ट किया, उसके बारे में क्लैरिफिकेशंस दी, तो आपको पता चला नहीं नहीं सर यहाँ नहीं करना चाहिए, तो अब आपके पास बाकी के 4 ऑप्शंस है ना, उन ऑप्शंस की तरफ जाना शुरू करो, एंड देन इफ यू आर सेटिस्फाइड देन मेक द इन्वेस्टमेंट। अब 4 में से कोई अगर आपको पर्टिकुलर समझ में आ रहा है तो उसकी तरफ जाकर इन्वेस्ट, अदरवाइज में इस चीज को नहीं करना चाहिए। ओके, सो वी आर डूइंग दिस टिल नाउ, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।